بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، حکومت نے عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بند گرا دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹1.45 فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ₹237.43 فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ڈیزل کی قیمت ₹247.43 فی لیٹر برقرار ہے۔ لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں ₹4.26 کمی کی گئی، جس کے بعد لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت ₹197.28 فی لیٹر۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں ₹8.30 فی لیٹر کمی کر دی گئی، جس کے بعد مٹی کے تیل کی نئی قیمت ₹202.02 فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اطلاق رات 12 بجے سے ہو چکا۔ نیو یارک میں موجود وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقات نے اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ شہباز شریف فرانس کے صدر اور نیوزی لینڈ کی ہم منصب سے بھی ملے۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ ملاقات میں تجارت اور توانائی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ شہباز شریف نے مختلف شعبوں میں پاک ایران تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امید ظاہر کی کہ ایرانی صدر جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیلاب کی صورتحال پر اجلاس، امدادی کارروائیاں اور مواصلاتی نظام کی بحالی پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو امدادی کارروائیوں کے حوالے سے ہدایات۔ شہباز شریف نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی اشیاء کی ترسیل میں تیزی لائی جائے۔ سیلاب متاثرین کے لیے 2 لاکھ خیموں کا آرڈر دے چکے ہیں۔ ادویات کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ سمرقند میں چینی صدر کے ساتھ ملاقات میں ML1 منصوبے پر بات چیت ہوئی، جبکہ چین کے حوالے سے خصوصی ٹاسک فورس بھی تشکیل دے دی ہے۔ فرانس اور پاکستان کا تباہ کن سیلاب کے بعد معیشت کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے تعاون پر اتفاق۔ فرانس سال کے اختتام سے قبل ایک بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کرے گا، جس کا مقصد پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو میں حصہ ڈالنا ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے موقع پر 2 طرفہ ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پاکستان میں حالیہ تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں اس کو معیشت کی پائیدار بنیادوں پر بحال کرنے اور اس کی تعمیر نو میں مدد کے لیے بین الاقوامی حمایت کو متحرک کرنے پر اتفاق کیا۔ متعلقہ بین الاقوامی مالیاتی اور ترقیاتی شراکت داروں کو اکٹھا کرنے کے لیے فرانس سال کے اختتام سے قبل ایک بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کرے گا، جس کا مقصد پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو میں حصہ ڈالنا ہوگا۔ تحریک انصاف کے خلاف مذہبی مرافرت پھیلانے کا الزام پنجاب کے بعد KP میں بھی وفاقی وزراء کے خلاف مقدمے کا اندراج۔ معاملے پر وفاق اور پنجاب حکومت آمنے سامنے۔ وفاقی حکومت نے CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ وفاق کے اقدام پر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ڈٹ گئے۔ چودھری پرویز الہی نے CCPO لاہور کو چارج چھوڑنے سے روک دیا۔ کہا CCPO لاہور کو وفاقی حکومت نہیں ہٹا سکتی اور نہ ہی تبادلے کی مجاز ہے۔ غیر قانونی اقدام نہیں مانیں گے۔ کیا پاکستان میں اہم ترین تعیناتی ایک کرپٹ آدمی کرے گا جو خود کرپشن کیسز میں ضمانت پر ہے؟ یہ ہر طرح سے غلط ہے کہ مفرور سزا یافتہ جھوٹا آدمی اہم تعیناتی کرے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں پاکستان میں 2 خاندانوں کے کرپشن پر غیر ملکی میڈیا نے ڈاکیومنٹریز بنائیں۔ اب ان 2 خاندانوں کو عوام پر مسلط کرنا قوم اپنی توہین سمجھتی ہے۔ حکومت کی تبدیلی نے پاکستان کی معیشت کو $5 ارب کا نقصان پہنچایا۔ ملکی معیشت پر ڈیجیٹل سیشن سے خطاب میں سابق وزیر اعظم نے کہا جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ بار بار کہہ رہا ہوں جلد سے جلد الیکشن کروا لیں، ملک کے مفاد میں ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے آرمی چیف کی۔ کون فیصلہ کرے گا؟ ایک مفرور، ایک جھوٹا آدمی، ایک کرپٹ آدمی، وہ آدمی جو کنوکٹڈ ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ آرمی چیف کون بنے گا۔ یہ 2 جب آئے ہیں ملک نیچے چلا گیا، قرضہ اوپر چلا گیا اور ان کی دولت بڑھ گئی ہے۔ ان 2 کرپٹ فیملیز نے صرف پاکستان کو بینکرپٹ نہیں کیا، انہوں نے اس کرپشن کو ایکسیپٹیبل کروا دیا۔ ملک کی معیشت نیچے جا رہی ہے، اس کی فکر نہیں ہے، ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، بلینز کے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ڈالر ہر روز IMF کے پروگرام کے باوجود اوپر جا رہا ہے۔ جتنی جلدی اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو اتنی جلدی یہ ملک پاتھ ٹو ریکوری ہوگا۔
नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर मुशावरत क्यों की? PTI का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। इमरान खान के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती पर नवाज शहबाज मुलाकात वज़ीर आज़म के ओहदे के हल्फ से इनहराफ है। फवाद चौधरी का कहना है गुमनाम नंबर से टेलीफोन आने, कारकुनों को हरासा करने का मामला भी अदालत ले जाया जाएगा। इमरान खान की सदारत में PTI लीगल टीम का इजलास। लंदन में शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ और इसाक डार से मुलाकात को वजीर आजम के हल्फ से रूगर्दानी करार दिया। चेयरमैन PTI का कहना है वज़रा बयान दे रहे हैं कि वजीर आजम तो नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ मुकर्रर करेंगे। ये सब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(1) की खिलाफ वर्जी ही नहीं बल्कि उनके ओहदों के हल्फ से भी मुकम्मल इनहराफ है। PTI का आर्मी चीफ की तैनाती पर नवाज शहबाज मुशावरत को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करार देकर कानूनी चाराजोई का फैसला। इजलास के फैसलों पर फवाद चौधरी का कहना है शहबाज शरीफ के दौरे लंदन की तफसीलात निहायत तशवीशनाक और आईन और कानून से मुतसादिम हैं। उम्मीद है अदालत उज़्मा आईन और कानून से इनहराफ के इन वाक़यात पर फौरी समाअत का एहतमाम करेगी। फवाद चौधरी ने कहा PTI कारकुनान को गुमनाम नंबर से टेलीफोन्स का मामला भी अदालत ले जाएंगे, जबकि शहबाज गिल पर हिरासत के दौरान तशद्दुद के मुकदमे को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। खुद नाम लेने की हिम्मत नहीं, कौम को कहता है उन्हें धमकाओ। मिस्टर XY कौन है, नाम लो, धमकियों के सबूत हैं तो सामने लाओ। मरीम नवाज का चैलेंज। चेयरमैन PTI पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहती हैं इमरान खान चाहता है पसंद का आर्मी चीफ ना आया तो सबको दागदार कर दूंगा। पसंद की तकर्रुरी के लिए इंतशार फैलाना कौन सा जमहूरी हक है? साजिशी बयानिया नाकाम होने पर अब ये फितना आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर आ गया। जलसों में ललकारता है, अंधेरे में पाँव पकड़ता है। फितना खान जिनका लाडला है वो उसे लाडला नहीं समझते। जहाँ पर उसके ऊपर मुश्किल आती है उसका तरीका ये है कि उसको ललकारो, उसको धमकाओ, उसको डराओ और अपना रास्ता साफ करो। खौफ के बुत तोड़ दो और गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो जाओ। अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। आपकी टांगे थर थर कांपती हैं। आप कहते हैं मिस्टर X, मिस्टर Y। अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए? आपने कभी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मिलते और क्या क्या बातें करते? जब धरने में लोगों को आपने 2014 के बाद जो धरना था जनरल रहील शरीफ ने बुलाया तो हंसते हंसते निकल गए। कल जो ये सारी अखाड़ पिछाड़ करा रहा था, आज अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे हैं मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं। जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। 2 महीने बाद हमारा इनकलाब फौत नहीं हो गया। ये जो आपने पंजाब की बात की, देखिए वो अदालती हुकूमत है, वो नाजायज़ हुकूमत है, उसको इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन ख़त्म होना है। जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। इमरान खान XY ज़रूरत के वक्त बोलते हैं, पता नहीं किसको कहते हैं। इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात का इल्म नहीं, मुलाकात नहीं हुई तो होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने मुल्की सलामती के लिए सियासी इदारों का इस्तेहकाम ज़रूरी करार दे दिया। कहते हैं पंजाब में अरकान असम्बली की बड़ी बड़ी बोली लगी। ख़रीद व फ़रोख्त के बावजूद ज़्यादा अरकान इमरान खान के साथ खड़े रहे। रजीम चेंज करके पूरे मुल्क के साथ मजाक किया गया। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो X किसको कह रहे हैं, Y किसको कह रहे हैं, ना हमने कभी उनसे पूछा, मगर बोलते वो उस वक्त हैं कि जब ज़रूरत होती है। मेरे पास बिल्कुल नहीं है और चूँकि मेरा ऐसी डोमेन भी नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि अगर नहीं भी हुई तो होनी चाहिए। इस मुल्क की सलामती के लिए जहाँ पे सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है वहाँ पे हमारे अदारों का अंदर भी इस्तेकाम होना, उनका मजबूत होना वो बहुत ज़रूरी है। पंजाब में मैं आपको हल्फन कहने के लिए तैयार हूँ कि इतने पैसों की बोली लगी, मगर एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी वो चेयरमैन साहब के साथ खड़ी रही। पूरी कौम के साथ मजाक हुआ जिस तरह रजीम चेंज होगी, क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज वो जेल के अंदर थे तो ऑब्वियसली देन ही विल हैव टू बी डिटेन्ड एंड सेंट टू द जेल। हमारा एक पॉइंट का ही हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप फेयर एंड फ्री फ्रेश इलेक्शंस कराएं। आटा खाने पीने की अशिया में सबसे अहम, लेकिन आजकल इसकी कोई सरकारी कीमत मुकर्रर नहीं है। जिसका जितना जी चाहे मनमानी कीमत पर फ़रोख्त कर रहा है। एक माह पहले तक 60 से 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जाने वाला आटा अब 120 से 130 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि कराची में 1 किलो आटा 130 से 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है।
मुल्क भर में आटे की कीमत को आग लग गई। आटे का कोई सरकारी नर्ख नहीं, हर कोई मनमानी कीमत पर आटा फरोख्त कर रहा है। 1 किलोग्राम आटा 120 से 130 रुपए फी किलो का हो गया। पेशावर में कीमतें बढ़ने के बाद 20 किलो स्पेशल आटे का थैला 2050 का हो गया। फाइन आटे का थैला 2250 रुपए तक पहुँच गया। चक्की वाले सारे अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं, कोई 90 लगा रहा है, कोई 100 लगा रहा है, कोई 110 लगा रहा है। आटा ऐसे नहीं देते, सामान लेना पड़ता है। वो आटा बहुत महंगा है। एक बंदा अगर कोई दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, तो वो किस तरह से इसको अफोर्ड करे। बलूचिस्तान में आटे की महंगे दामों फरोख्त के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त गुजार का कहना है सूबे में 20 किलो आटे पर हुकूमत 500 रुपए से जायद कमा रही है। आटा चारों सूबों में यकसा कीमत पर फरोख्त किया जाए। लाहौर में जखीरा अंदोज माफिया ने मार्केट से आटा गायब करके कीमत 120 रुपए फी किलो कर दी। फैसलाबाद में भी मार्केटों से सरकारी आटा गायब है। चक्की एसोसिएशन ने मनमानी कीमतें वसूल करना शुरू कर दी। अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह से डरें, ये महंगाई का अजाब ना लेके आए। ये गरीब बंदे के मुंह से रोटी का नवाले इन्होंने छीन लिया। आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, घर में रोटी नहीं बन रही, बाहर आते हैं तो रोटी का रेट बहुत ज़्यादा, तंदूर पे आते हैं तो ये रेट बहुत ज़्यादा लगाते हैं। 6000 रुपए का तोड़ा आटे का बाद किसी ने की नान लेना तो किसी ने की आ 2-3 दिन में 25 रुपए का नान होना बाजार दे विच। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब है। शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1500 रुपए तक का हो गया। बिजली, गैस, गंदम और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने 2 वक्त की रोटी की कीमत में भी इजाफे का बिगल बजा दिया है। नान बाई एसोसिएशन ने रावलपिंडी ज़िले इंतज़ामिया को 28 सितंबर तक की डेडलाइन दे दी है। रिपोर्ट करेंगे खालिद चौधरी। इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों के लिए बुरी खबर, तंदूरी रोटी की कीमत में इजाफे का अंदिया। नान भाइयों ने रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफे की तैयारी कर ली। रावलपिंडी इंतजामिया को 28 सितंबर तक की डेडलाइन दे दी। नान भाई एसोसिएशन के सदर शफीक कुरैशी कहते हैं आटा, बिजली और गैस की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। हमारा जो आटा, मैदा, फाइन, LPG सिलेंडर, गैस का बिल और खासकर इस 2-3 महीनों में बिजली का बिल, यानी 12 से 15 हज़ार जो हमारा बिजली का बिल आता था 2000, 2500 या 1500, वो बिल अब 12 हज़ार से अब हो गए। महंगाई के मारे अवाम अब तंदूरी रोटी 25, किलो वाला नान 30 और रोगनी नान 50 रुपए में खरीदने के लिए तैयार रहे। महंगाई के मारे अवाम को चंद रोज बाद रोटी 20 रुपए जबकि नान 25 रुपए में मिलेगा। प्रोडक्शन टीम के साथ खालिद चौधरी, न्यूज़, रावलपिंडी। अलनूर ऑर्चिड हाउसिंग स्कीम में मरीना स्पोर्ट सिटी की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अलनूर ऑर्चिड में मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर चेयरमैन अल जलील ग्रुप चौधरी नसरुल्लाह वड़ाइच, CEO अलनूर ऑर्चिड मलिक खालिद ढड्डी समेत दीगर भी मौजूद थे। अल जलील डेवलपर्स ग्रुप के डायरेक्टर सरदार असलम वड़ाइच ने अपने सार्फिन को खुशखबरी देते हुए ब्लॉक C के पोजीशन का ऐलान किया। उन्होंने लाहौर वेस्ट में पाकिस्तानियों के मयार ज़िंदगी को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात फराहम करने के अज़्म को दोहराया। तकरीब का एहतमाम आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार मलकू की शानदार लाइव परफॉर्मेंस से हुआ। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुबैरा रहमान की चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद से मुलाकात हुई। मुलाकात में तालीम के फ़रोग़ और क्वालिटी एजुकेशन पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर सुबैरा रहमान ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के मुतालिक आगाह किया। प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान ने तलबा को सहूलियात के हवाले से भी आगाह किया। प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान ने ओहदा संभालने पर चेयरमैन HEC को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का मुल्क में क्वालिटी एजुकेशन के लिए अहम किरदार है। हायर एजुकेशन कमीशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल हल करे। चेयरमैन HEC ने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को सहूलियात फराहम करेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली से जर्मन सफ़ीर अल्फ्रेड ड्रांस की असम्बली चैम्बर में मुलाकात हुई। सरदार मोहम्मद सिफ्तैन खान ने कहा है कि पाकिस्तान जर्मनी को अपना दोस्त और इक़्तिसादी शराकतदार तस्वुर करता है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि आलमी अमन और खुशहाली पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेहत और समाजी शोबों की बेहतरी के लिए जर्मनी के तजर्बे और महारत से इस्तेफादा करना चाहिए। दोनों ममालिक की सियासी क़यादत के दरमियान मुसलसल राबते दोनों अक़वाम को करीब लाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जर्मन सफ़ीर ने पंजाब असम्बली के ऐवान का दौरा भी किया।
हिरासत के दौरान मुलजिमान से मनपसंद इकबाल जुर्म करवाने और तशद्दुद में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का फैसला। फैसलाबाद पुलिस ने हर मुकदमे की तफ्तीश जदीद तरीकों से करने के अहकामात जारी कर दिए। रिपोर्ट करेंगे शाहिद अली। फैसलाबाद में पुलिस के रवायती तफ्तीशी निज़ाम को दफन करने का फैसला। आइन के आर्टिकल 14 पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। मुलजम की इज्जत नफ्स और इंसानी हकूक की पामाली को हर सूरत रोका जाएगा। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद उमर सईद मलक का पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम में साइंसी शवाहद को शामिल करने की हिदायत। दौरान हिरासत मुलजम पर तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसरों को नौकरियों से फारिग करने का फैसला। हर मुकदमे की तफ्तीश मोबाइल डाटा, CCTV कैमरों, फिंगर प्रिंट्स और DNA टेस्ट समेत दीगर जदीद ज़राए से करने के अहकामात जारी कर दिए गए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की बड़ी वाज़ेह हिदायत है कि आप तशद्दुद जो है वो बिल्कुल भी ना करें और अपना जो तफ्तीश का रुख है वो साइंटिफिक बुनियादों की तरफ मोड़ दें। जिसमें जो हम साइंटिफिक बुनियादों की तरफ हम कहते हैं तो उसमें DNA टेस्ट है, फोटोग्रामेट्री टेस्ट है, CCTV एनालिसिस है। अगर पुलिस अपने रवायती तफ्तीशी निज़ाम की बजाय साइंसी बुनियादों पर मुकदमात की तफ्तीश करती है तो इससे अवाम में पुलिस पर एतमाद बहाल होगा। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ शाहिद अली, नियो, फैसलाबाद। KP में मतरूका वक्फ इमलाक के सीनियर अफसरान कब्जा माफिया के सहूलतकार निकले। अरबों रुपए की सरकारी जायदाद पर अफसरान की मिली भगत से लैंड माफिया काबिज है। FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आलिम ज़ेब। खैबर पख्तूनख्वा में मतरूका वक्फ इमलाक के सीनियर अफसरान सरकारी अराजी पर काबिज। माफिया के साथ रवाबित का इंकशाफ। FIA ने घेरा तंग कर दिया। दर्जनों अफसरान के खिलाफ इंक्वायरीज का आगाज। 2 अफसरान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। काफ़ी सीनियर लेवल पे भी उनके लोग हैं और मिडिल मैनेजमेंट में भी है और वो ओवरऑल 2 तो मेरा ख्याल है उन पे केस दर्ज हो चुके हैं 2 बंदों पे और बाकियों पे भी जो है वो हमने इंक्वायरी कंप्लीट कर ली है, उन पे भी पर्चे होंगे। डायरेक्टर FIA पेशावर सर्कल मुजाहिद अकबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 4 माह से कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुना गया सू मोटो के तौर पे और उसके बाद 1 मैन कमीशन जो था शेख सडू साहब की सरबराही में वो बना भी है इस पे, जो कि हम इस पे हर एक क्वार्टरली जो है वो रिपोर्ट भी जनरेट करते हैं। FIA हुकाम के मुताबिक सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। मजीद बेज़ाब्तियाँ भी मुतवक्की है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ मोहम्मद आलम ज़ेब, न्यू न्यूज़, पेशावर। कराची में एक बार फिर मुबैना पुलिस एहलकारों की जानिब से अगवा बाराए तावान की वारदात का इंकशाफ हुआ है। 2 रोज़ कबल न्यू कराची से एक शहरी को घर से अगवा करके ख्वाजा अजमेर नगरी थाने ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शहरी को 20,000 रुपये की अदायगी के बाद रिहा किया गया। मुतासरा शहरी का बयान मंजर आम पर आने के बाद SSP ज़िला वस्ती से वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए इंक्वायरी शुरू कर दी गई। कराची का एक और शहरी पुलिस गर्दी का शिकार। न्यू कराची में मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों की जानिब से अगवा बराए तावान की वारदात। सादा लिबास एहलकारों ने शहरी को घर से अगवा किया। कल रात को जो अजमेर नगरी थाने से मेरे घर में 4 पुलिस वाले सिविल वर्दी में आए थे और इसमें एक जो है सिर्फ पैंट पहना हुआ था पुलिस की और जूते, और उसके अलावा जो जब उन्होंने पूरा घर मेरा तेज नेस कर दिया, जब कुछ नहीं मिला मुझे घर वहाँ ले गया अजमेर नगरी थाने ऊपर। अलग से ऑफिस बनाया हुआ उन्होंने, वो थाना भी नहीं था ऊपर। मुबैना पुलिस एहलकारों ने अहलिया को भी थाने बुलाने की कोशिश की। इनकार पर मजीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 20,000 रिश्वत के एवज रिहाई मिली। 50,000 रुपये मांगे थे। जब मैंने मना किया तो उन्होंने बोला कि जो ना अपनी वाइफ को बुलाओ, हम उनसे बात करेंगे। और फिर उसके बाद जो उन्होंने जब मैंने इस बात पे मुँह मारी की तो मुझे और मारा कि तुम बेगम को बुलाओ। मैंने बोला नहीं, मैं बेगम को नहीं बुला सकता, इधर कभी भी नहीं बुलाऊंगा, तुम जेल भेज दो मुझे। तो उन्होंने मुझसे 10,000 रुपये घर से मंगवाए। मेरे पर्स में 8-10 हज़ार रुपये थे, वो भी ले लिए। बहुत तशद्दुद किया है मेरे ऊपर और मेरा पूरा घर जो ना उलट पुलट कर दिया। उसके बाद भी कुछ नहीं मिला, इतना मारने के बाद भी उनको। SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी शुरू कर दी। मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का अंदिया दे दिया। रज्जाब अली, नियो न्यूज़, कराची। सिंध में सैलाबी सूरत-ए-हाल तो कम हो गई, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सिंध हुकूमत ने स्कूल्स में पनाह लेने वाले मुतासरीन को टेंट सिटी मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। सूबे के सैलाब ज़दा इलाके बीमारियों की आमाजगाह बन गए। बेशतर अजला ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। मुतासरा इलाकों में लोग जान बचाने के लिए सड़कों के किनारे बेसरो सामानी के आलम में पड़े हैं। अतराफ में जमा पानी में मच्छरों और दीगर हशरात की बहुतात।
मुतासरीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मुतासरा इलाकों में सांप के डसने और कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक सांप के डसने के 134 और कुत्तों के काटने के 687 वाकयात रिपोर्ट हो चुके। दूसरी जानिब JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लाड़काना में सैलाब मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा लिया। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली पाकिस्तान पहुंच गईं। सिंध के सैलाबज़दा ज़िला दादू का दौरा किया। हॉलीवुड स्टार और अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफ़ीर की मुतासरीन से मुलाकात हुई। उन्होंने मुतासरा ख़वातीन से उनकी ज़रूरियात और मुस्तक़बिल के मसाइब रोकने के इक़दामात का जायज़ा लिया। सैलाब से होने वाले नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। एंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन के ख़ुसूसी सफ़ीर हैं। वो इससे कबल 2010 के सैलाब और 2005 के ज़लज़ले के मुतासरीन से मुलाकात के लिए भी पाकिस्तान आ चुकी हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत नैब अदालती सवालात का बराह रास्त जवाब देने में नाकाम है। अदालत ने नैब से कहा कि नवाज शरीफ का कंपनियों के साथ ताल्लुक़ साबित करें, फ्लैट्स 1993 में ख़रीदना साबित करें और फिर मरीम नवाज़ का फ्लैट से मुतालिक साबित करें। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि इससे ज़्यादा आसान ज़ुबान में नैब से सवाल नहीं किया जा सकता। एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। क्या सबूत है कि नवाज शरीफ ने अपनी जेब से पैसे अदा करके लंदन फ्लैट्स खरीदे? जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। जायजा लेंगे कि किन शवाहिद की रोशनी में मरीम नवाज पर मुआवनत का इल्जाम लगाया गया। अगर नवाज शरीफ का लंदन फ्लैट से ताल्लुक नहीं तो फिर मरीम नवाज पर मुआवनत का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। कत्ल साबित किए बगैर दूसरे मुलजिम को मुआवनत पर सजा नहीं दी जा सकती। समाअत शुरू हुई तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मरीम नवाज और कैप्टन सफदर का किरदार मरकजी मुलजिम की मुआवनत का था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि क्या मरीम नवाज ने कहीं कहा कि प्रॉपर्टीज मेरी हैं? प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि ट्रस्ट डीड ना होती तो मरीम नवाज के खिलाफ नैब का कोई केस ना होता। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पहले आपने ये साबित करना है कि ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ ने खरीदी, फिर इसमें मुआवनत का इल्जाम आएगा। अदालती इस्तफसार पर वकील अमजद परवेज ने कहा कि नवाज शरीफ ने किसी भी फोरम पर नहीं कहा जायदाद उनकी है। नवाज शरीफ ने JIT, सुप्रीम कोर्ट और नैब कोर्ट में मलकियत से इनकार किया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा 4 फ्लैट्स की ओनरशिप पर किसी का कोई एतराज नहीं, तो अदालत ने हिदायत की कि नेल्सन और नेस्टोन का टाइटल डॉक्यूमेंट दिखाएं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद केस की मजीद समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जहांजेब अब्बासी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैरान कुन मुकदमा चल रहा है। मरीम नवाज के खिलाफ अपील पर नैब के वकील शहबाज शरीफ की मुकर्ररा करदा है। अदालत उनसे सवाल पूछ रही है, उनको समझ नहीं आ रही वो डिफेंस का वकील है या प्रोसिक्यूशन का। ये अजीब मंजर आपको कभी नजर नहीं आएगा। नैब कानून में तरामीम के बाद अहम पेशरफ्त। नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस की नैब अपीलों पर नजर सानी का फैसला कर लिया। नैब 10 रोज़ में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ अपीलों और 25 साल पुराने केसेस का जायजा लेगा। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अवैस। नैब कानून में तब्दीली के बाद बड़ी पेशरफ्त। नैब का 25 साल पुराने केसेस का भी तरमीमी एक्ट के तहत जायजा लेने का फैसला। आसिफ जरदारी के खिलाफ पुराने मुकदमात पर भी नजरसानी की जाएगी। उर्सिस ट्रैक्टर, ARY गोल्ड रेफरेंस, SGS कोटेक्ना पोलो ग्राउंड मुकदमात का दोबारा जायजा लिया जाएगा। नैब ने नजरसानी के लिए हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलों पर मोहलत मांग ली। नैब ज़राए के मुताबिक पुराने केसेस से मुतल्लिक वजारत कानून से राय भी मांगी गई थी। वजारत कानून ने राय देने से गुरेज किया था। वजारत कानून ने नैब को खुद फैसला करने का कहा था। नैब बोर्ड का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लैंड रेफरेंस, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स रेफरेंसेस का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। रेफरेंस नैब दायरा इख्तियार में ना होने पर अदालतों में ज़ेर समाअत अपीलों को खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद अवैस, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। दीगर खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान कस्टम्स ने कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट नू दस्तगीर भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स का एजाजी ओहदा भी दे दिया। रिपोर्ट करेंगे हाफिज महबूब। कस्टम्स हाउस लाहौर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नौ दस्तगीर भट्ट के एजाज में तकरीब का इनकाद किया। नौ भट्ट की आमद पर कस्टम्स पुलिस ने सलामी पेश की। मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन मुकर्रम झा ने नौ दस्तगीर भट्ट को असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स के एजाजी बैज लगाए।
इस मौका पर उनका कहना था कि दीगर खेलों के खिलाड़ियों की तरह वेट लिफ्टर नो बट को भी सपोर्ट करेंगे। ये जो इनकी आगे की तैयारी है उसके अंदर भी जो सपोर्ट हम डायरेक्टली कर सकें, इनडायरेक्टली कर सकें, वो हम इनकी सपोर्ट करेंगे, इनको आगे लेके चलेंगे। गोल्ड मेडलिस्ट नो दस्तगीर भट्ट का कहना था, पाकिस्तान कस्टम का शुक्रगुजार हूँ, इनकी सपोर्ट के साथ मेरी जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। एशियन गेम्स के लिए हमारी तैयारी जो है वो भरपूर है इस वक्त, और इंशाल्लाह इसी को अगर कंटिन्यू करते हुए अगर हम अगले साल के अगस्त तक अगर हम इसी तरह मेंटेन करते रहें तो इंशाल्लाह वहाँ पे इंशाल्लाह इजीली मेडल आ जाएगा। नो दस्तगीर भट्ट ने हुकूमत से गुजरावाला में वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग के लिए एकेडमी बनाने का मुतालबा कर दिया है।